Please. So good morning, class 10th students. Good morning, teachers. If there is any, I can't see them. चलिए बेटा. So our body, organisms body, the body of living animals, not plants. हम बात नहीं कर रहे हैं. It is controlled by the nervous tissue, nervous system, and nervous system. It has different type of nerves, and it has two type of nervous system. आपको थोड़ा नजर नहीं आ रहा होगा. Let me check its brightness. So you can see here that the nervous system, it consists of CNS. CNS means central nervous system, brain, और उसके पीछे क्या है? Spinal cord. ठीक है? So this is brain and this is spinal cord, right? So this is central nervous system present in the center. But this nervous system, because it is controlling all the parts of the body. Beta, idhar, girls, idhar, seedhe, no talking. So it is controlling all the parts of the body. So this central nervous system, it is connected to each and every part through the wires called as nerves. So this network of nerves is called as peripheral. Peripheral means बाहर की तरफ. ये था सेंटर. जैसे आपके सिटी में भी होता होगा, कोई सेंट्रल रीजन है. फिर हम कहते हैं आपका स्कूल, ऑक्सफोर्ड स्कूल जो है, हम कहते हैं पेरिफ्री पे है, बाहर वाली तरफ है, शहर के बाहर की तरफ है. तो दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसके जो दोनों साइड्स नीचे ऊपर, that is peripheral nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord, whereas peripheral nervous system, it consists of different nerves. जल्दी से मुझे बताइए. Yes, who is going to tell me? एकम जोत. एकम जोत, आजा बेटा, जल्दी से आओ. क्लास 10th ही है. सनफ्लावर, एकम जोत. यस, कम ऑन. मैंने ज्यादा मुश्किल नहीं पूछना है, जल्दी से आओ. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. क्या पूछोगे? मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा. टेल मी द टू टाइप ऑफ नर्व्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी बेस्ड ऑन देयर, ध्यान से, बेस्ड ऑन देयर कनेक्शन विद नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हाँ, जोर से. अच्छा, पहले मैं दोबारा से पूछ रही हूँ. जो ब्रेन के साथ नर्व्स कनेक्टेड है, उनको क्या बोलते हैं? उधर से क्या पूछ रहे हो? उधर से सीधे बैठो. इधर पहले सीधे खड़े होना सीखो. पहले तो स्क्रीन के सामने आओ, बीच में, बीच में को आओ. हाँ, और सीधे देखो, स्क्रीन की तरफ देखो. क्या इधर उधर यहाँ वहां? जो ब्रेन से, अच्छा चलो छोड़ो, ब्रेन से तुम्हें थोड़ा मुश्किल होएगा याद रखना. जो स्पाइनल नर्व से कनेक्टेड है नर्व्स, उनको क्या बोलते हैं? उसी से ही रिलेटेड है, स्पाइनल कॉर्ड से ही रिलेटेड है. इंटेलिजेंट बच्चे हो बेटा, डॉक्टर्स हो हमारे फ्यूचर के, आई थिंक. स्पाइनल नर्व्स, दे आर स्पाइनल नर्व्स. बैठो. सो स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स. नहीं पता तो लिखो. सो टू टाइप ऑफ नर्व्स इन अवर बॉडी: स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स अटैच्ड टू द स्पाइनल कॉर्ड, जनरल टर्म्स है, कहीं भी आ सकती है. क्रेनियल नर्व्स कनेक्टेड टू द brain. Spinal nerves connected to spinal cord, cranial nerves connected to brain. Then there are present, अगर हम nerves की बात करें तो हमारे पास और क्या आ जाती है? Sensory nerves. Sensory nerves का क्या function है? Yes, who will tell me? दिया. दिया is there? दिया सेंसरी नर्व्स नहीं है? नो वरीज. खुशी गर्ग, खुशी इज देयर? खुशी जल्दी से आ जा बेटा. हम दो नर्व्स की बात करेंगे, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स.
जल्दी से इसका फंक्शन स्क्रीन के सामने मुझे दिखना चाहिए और इधर उधर नहीं देखना. हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंसरी नर्व? Nerves carry the electrical impulse from receptors To central nervous system. Very good. They transport, they conduct sensory impulse from receptors to central nervous system. Then motor nerves, they carry the response from the central nervous system to the effectors. to effectors. Very good. Better Khushi. So sensory nerves, they conduct information from receptors to central nervous system, whereas motor nerves, they conduct impulses, messages हम कह सकते हैं, response हम कह सकते हैं from central nervous system. Central nervous system से क्या लेके जा रहे हैं? Response. कहाँ पे response दे रहे हैं? That is effectors. And name the type of effectors. Yes, who will tell me? Gurjot Kaur. Gurjot Kaur is there? Yes, Gurjot, tell me the type of effectors. जल्दी से, although मुझे लगता है मैं फटाफट से कराऊं, बट बिना पूछे मेरा दिल ही नहीं करता आगे जाने को. Effectors, कौन response देता है? बीच में आओ, so that I can see you. Tell me two type of effectors in our body. पीछे से आंसर आ गया, अब तो बोलो जल्दी से. इधर सामने सामने देखो, उधर नहीं, बीच में को. Come near the center and don't rotate your neck. Yes, tell me which are the type of effectors? कौन respond करता है? बेटा सर ने खत्म करा दिया, मैंने भी पिछली बार बताया था. You stand, you remain here. Who will tell me? जल्दी से आओ. Boys में last second bench, first boy, फटाफट से, जो कॉर्नर में बैठे आ जाओ जल्दी से. फटाफट. नहीं तो बेटा मैं टाइम लूंगी, आज मैंने खत्म करा के जाना है न्यूरल कंट्रोल. आई विल टेक योर नेक्स्ट पीरियड ऑल्सो. हाँ जी, जल्दी से इफेक्टर्स बताओ. हाँ, मसल्स एंड ग्लैंड्स. बेटा दो ही टाइप के, याद रखो. बैठो बेटा, बोथ ऑफ यू सिट डाउन. सो गो टू योर सीट. सो मसल्स एंड ग्लैंड्स आर इफेक्टर्स. ये ही रिस्पॉन्ड करते हैं. हमने, ब्रेन ने कहा हाथ उठाओ, हमने हाथ उठाया. ब्रेन ने कहा अब फूड स्टमक में चला गया है, स्टमक के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होंगे फॉर मिक्सिंग, वो हो रही है. और क्या कर रहा है ब्रेन? और कह रहा है फूड चला गया स्टमक में, द ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विल सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, माउथ विल सिक्रीट सलाइवा. ठीक है. सो कोई फैक्टर्स, और क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, सिर्फ ग्लैंड्स एंड मसल्स रिस्पॉन्ड. रिसेप्टर्स बहुत टाइप के हैं. रिसेप्टर्स आर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स, राइट? Heat and cold receptors. Receptors are of then tango receptors, that is taste receptors. Receptors are present at different places. Then there are internal receptors also. Many type of receptors, but only two type of effectors. जल्दी से everybody speak. कौन से दो टाइप के receptors है? मसल्स एंड ग्लैंड्स, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. आपके सर ने आज शुरू कराना होगा. ही विल टेल यू एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो टू टाइप ऑफ इफेक्टर्स, that is muscles and endocrine glands, right? So now how the message is conducted. देखिए, the receptor impulse, हम external impulse की बात करें. everybody here, सीधा इधर देखो, समझो, है ना? कुछ बनाने की जरूरत नहीं, बट समझो. सो व्हाट हैपेंस, दैट रिसेप्टर्स रिसीव द स्टिमुलस, है ना? हमारी उंगली में पिन लग गई, दर्द हो गया, वट एवर इट इज. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं. रिसेप्टर्स रिसीव द स्टिमुलस. क्या किया उसके बाद? उस स्टिमुलस को कहा, किसमें कन्वर्ट किया? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में,
है ना, वो स्टिमुलस, आवाज सीधी नहीं जाती है, आवाज को पहले किस में चेंज किया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, देन इट ट्रेवल्स सेंसरी न्यूरॉन में गया, रिसेप्टर ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाई, उसको भेजा सेंसरी न्यूरॉन में, सेंसरी न्यूरॉन देन ट्रेवल्स टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड एक जंक्शन है जहां सब कुछ मीट हो रहा है, सारी नर्व्स यहाँ पे आकर मीट हो जाती है, ठीक। तो स्पाइनल कॉर्ड, बॉयज इधर नो टॉकिंग, सो स्पाइनल कॉर्ड एक्ट्स एज द जंक्शन, सो यहाँ पे सेंसरी नर्व आई, ठीक है, फिर सेंसरी नर्व यहां से इसने मैसेज, फिर एक दूसरी इसने साइनैप्स करके एक दूसरी नर्व को, सेंसरी नर्व को मैसेज भेजा, एंड दैट नर्व टेक्स द मैसेज टू द सेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रम, हम सेंसरी एरिया की बात कर रहे हैं, सेरिब्रम या ब्रेन की हम बात करें, सो इट गोज टू sensory area of the brain, right? This sensory area, इसने कुछ नहीं करना, it sends the electrical impulse to the association area, हमारे ब्रेन में olfactory एरिया अलग है, फोटो एरिया अलग है, टेस्ट के लिए एरिया अलग है, सोचने के लिए एरिया अलग है, right? There are different areas in our brain, right? So sensory area में गई, specific, let us say ये टच का है या स्मेल का है, वट एवर इट इज, सेंसरी एरिया में उसने कुछ नहीं किया, वाया साइनेप्सिस इट सेंड द इम्पल्स टू अनदर एरिया कॉल्ड एज एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया ने देखा कि ये इम्पल्स आई है, अच्छा ये इम्पल्स पहले भी आई थी, उस टाइम क्या रिस्पॉन्स दिया था, अच्छा अब बॉडी को क्या चाहिए है, ठीक है, तो वो इन सब एक्सपीरियंसेस से इट क्रिएट्स a message for that stimulus, ठीक है, तो हमारे पास कोई कहता है कि फलाने पड़ोसी का झगड़ा हो गया, तो हम सोचते हैं कि अच्छा वो पड़ोसी कैसा है, क्या झगड़ालू है, कभी उसका झगड़ा हुआ था किसी के साथ, नहीं नहीं झगड़ा नहीं हुआ है ना, ये तो बड़ा शरीफ सा है, चलो फिर हम जाते हैं कि नहीं नहीं, हम दूसरी पार्टी को कहते हैं नहीं ये बहुत अच्छा है, तुम जाओ तुम गलत कर रहे हो, ये हम अपना रिस्पॉन्स वैसे तैयार करते हैं, लाइकवाइज दिस एसोसिएशन एरिया इट prepares the response, then it sends the response to the motor area, हम किसी बच्चे को कहते हैं जा भाई ये जाकर करके आ, इसी तरह से एसोसिएशन एरिया वो रिस्पॉन्स मोटर एरिया को देता है, मोटर एरिया सेंड्स द रिस्पॉन्स टू द मोटर नर्व, ये मोटर नर्व आई, मोटर नर्व फिर कहाँ गई, फिर गई ये स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड तो जंक्शन है, हर एक ट्रेन ने वहां जाके मिलना ही मिलना है, देन दिस मोटर नर्व इट गोज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड द मैसेज goes to the muscles of the, you know, of the arm or the fingers, जो भी फैक्टर्स है, जहां के भी मसल्स ने एक्ट करना है, it goes to the muscles of the particular place, effectors, right? तो दोबारा से हम बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, सबसे पहले ये आप लिख सकते हो, ठीक, तो सबसे पहले आ जाता है रिसेप्टर्स, सबसे पहले रिसेप्टर्स ने स्टिमुलस लिया, स्टिमुलस कहां पे गया, रिसेप्टर्स के पास गया, रिसेप्टर्स ने generate electrical impulse and this electrical impulse किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहां पे गई, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड sends the impulse to sensory area of brain, सेंसरी एरिया ने मैसेज कहां पे भेजा, मेरे साथ बोलते चलो, एसोसिएशन एरिया ऑफ ब्रेन, एसोसिएशन एरिया ने क्या किया, प्रिपेयर्स, बोलो जल्दी से,
रिस्पॉन्स। फिर ये रिस्पॉन्स कहाँ गया? मोटर एरिया में। मोटर एरिया से मोटर नर्व में, और ये मोटर नर्व फिर कहाँ गई? स्पाइनल कॉर्ड में, एंड स्पाइनल कॉर्ड देन sent the message to effectors again through another motor nerve. Is it right? जल्दी से ये एक पैसेज लिख लो, मतलब ये पाथ कवर करो। इसके बाद आपकी किसकी क्लास है बेटा? साइंस की ही क्लास है? मनप्रीत सर की क्लास है? चलिए, बेटा बातें नहीं, पीछे मत देखो, पीछे नहीं, कर लो फटाफट से, लिख लो, ये लिख लो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? आप लिखते हो सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम क्या देख रहे हैं कि बहुत जगह साइनैप्स हो रहा है। पहले तो यहीं पे ही बहुत जगह साइनैप्स होता है। सो पासिंग द पार्सल, राइट? सो हियर द नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव्स फ्रॉम one neuron to another neuron, and that is called as synapse. So what is synapse? Definition लिख लो, write down. Synapse पिछली बार लिखवाई थी मैंने, पर फिर दोबारा से एक लिख लो। It is the close proximity of adjacent neurons. एकदम किसी, वो एकदम हाथ नहीं पकड़ा हुआ, एक दूसरे के आसपास है। Close proximity of adjacent neurons where nerve impulse or electrical impulse passes from axon of one neuron to dendrites of adjacent neuron. यहां पे देखिए बेटा, सी हियर, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। ये नर्व एंडिंग्स आपको पता है ना? एक्सॉन की बहुत सारी ब्रांचेस होती है दैट आर नर्व एंडिंग। यहाँ पे वी आर शोइंग यू वन नर्व एंडिंग, एंड वी आर शोइंग यू द मैग्निफाइड व्यू ऑफ वन डेंड्राइट ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन, साथ वाले न्यूरॉन का। सो दिस इज एक्सोडेंड्रिटिक साइनैप्स, ये नर्व एंडिंग है। प्री साइनेप्टिक नॉब भी कहते हैं, हम डायग्राम बनाएंगे, बट यू कैन सी हियर प्री साइनेप्टिक नॉब। क्या हो रहा है? सो दिस इज, ये साइनैप्स है, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये नर्व इंपल्स आई, इसने क्या किया? जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ये फ्यूज करके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इस जगह पे न्यूरोट्रांसमीटर आ गए। These neurotransmitter binds with the receptors on the postsynaptic nerve and then transfer the nerve impulse. दोबारा से आप देख सकते हैं, ठीक है? अगेन ये नर्व फाइबर है, इसकी नर्व एंडिंग्स है, देखो this fiber is synapsing with the dendrites of these neuron, adjacent neuron, ठीक है? तो अब मैं आपको डायग्राम हम बना लेते हैं। Everybody draw the diagram of synapse, right? So write exodendritic synapse, write down
एक्सोडेंड्रिटिक साइनैप्स, केमिकल साइनैप्स, थोड़ा सा और कर लो, एक्सोडेंड्रिटिक chemical synapse between adjacent neurons. Exodendritic chemical synapse between adjacent neurons. Exodendritic का क्या मतलब है? That neural impulse, everything write down, passes from axon of one neuron to dendrites of adjacent neuron. Then chemical synapse. Chemical synapse means transfer of न्यूरल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक ही बात है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बिटवीन adjacent neurons with the help of chemical neurotransmitter. केमिकल न्यूरो, जो केमिकल है, सच एज, उसका क्या नाम है जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन है, दैट इज, याद रहे तो बहुत अच्छा है, दिस इज ओनली फॉर योर जनरल नॉलेज एट दिस टाइम, क्योंकि 10th की बुक में कहीं भी एसिटाइल कोलाइन नाम नहीं दिया है, तो ये नहीं भी याद रहे, नो वरीज, 11वीं में पढ़ लेना, ठीक है। सो एसिटाइल कोलाइन इज द केमिकल ट्रांसमीटर। बहुत सारे केमिकल्स है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है हमारे नर्वस सिस्टम में, बट दिस इज मोस्ट कॉमन, राइट। तो हम एक बार जल्दी से लेट्स ड्रॉ, ये एक्सॉन है, ये ध्यान से, दीज आर नर्व एंडिंग्स, और ये हमारे पास एडजेसेंट न्यूरॉन है। This is, you know, dendrites. Synapse, let us say, इन दो में हो रहा है, ये साइनेप्स है, तो हम इन दो में मैग्निफाइड व्यू दिखाते हैं, इस दो का, राइट। तो लेट्स सी, और सबने बनाना भी है, तो ये एक नर्व एंडिंग का हम मैग्निफाइड व्यू दिखा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्री synaptic knob. This is presynaptic knob. Here क्या प्रेजेंट है? ये हर टाइम प्रेजेंट है, चाहे इंपल्स है या नहीं है।
क्या बोलते हैं इनको? दीज आर न्यूरो, आप पूरा लिख लेना, न्यूरो ट्रांसमीटर, सॉरी, न्यूरो ट्रांसमीटर वेसिकल्स. These are neurotransmitter vesicles. Then adjacent to it is present dendrite, हम दिखा रहे हैं. This is the dendrite, magnified view of dendrite, and this is called as post synaptic membrane. बातें बिल्कुल मत करो, सिर्फ पेन कॉपी और ब्रेन ये चलाओ, ठीक है एवरीबडी. ये मत सोचो कि चल छोड़ हमने क्या करना है, बट वहां पे आ जाए एक्सप्लेन साइनेप्सिस, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, डायग्राम बनाओगे 3 नंबर तो इसी में ही मिल जाएंगे. ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये जो दिख रहे हैं दिस इज रिसेप्टर्स. किसके रिसेप्टर्स? न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स. दिस इज, इस जगह को, ये जो ये वाली स्पेस है दो न्यूरॉन्स के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट. क्लेफ्ट या बरो जो भी होता है, दिस इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट. बातें नहीं बेटा, मुझे जो बातों की आवाज आ रही है ना वो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस. एंड फर्स्ट बेंच गर्ल्स तो बिल्कुल. So what happens that nerve impulse reaches here? Write down, nerve impulse reaches, write down, nerve impulse reaches presynaptic knob. The nerve impulse reaches presynaptic knob. Second point, many calcium ions enters presynaptic knob. Many calcium ions enters, बाहर से अंदर जाते हैं. ये मेम्ब्रेन जो है, क्योंकि इंपल्स आई है ना बेटा, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है. पहले कैल्शियम आयंस नहीं आते, जैसे इंपल्स आई कैल्शियम आयंस अंदर आए, दरवाजे खुल गए. राइट, द कैल्शियम आयंस बाइंड्स विद neurotransmitter receptors. Calcium ions binds with neurotransmitter receptors. Next point, these vesicles, जब कैल्शियम इनसे बाइंड करते हैं तभी these vesicles fuse with, these vesicles fuse with the membrane. These vesicles fuse with the membrane of presynaptic knob. With the membrane of presynaptic knob and release neurotransmitter in synaptic cleft. Next point, neurotransmitter binds with the receptors. Neurotransmitter binds with the receptors of postsynaptic membrane. Receptors on the postsynaptic membrane, due to which there is change in polarity, negative positive side.
there is change in polarity of adjacent neuron. जो ये adjacent neuron था, इसकी polarity change हो गई. This shows that कैसे change हुई? This shows that electrical impulse moved from one neuron to another neuron. From one neuron to another neuron. ठीक है जी. एक और आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट ऑन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, synapses between neurons and muscle fibers. Synapses between neuron and muscle fibers. सेम है, डायग्राम आ जाए आपने सेम बनाना है. क्या करना है, यहां पे आपने क्या शो कर देना है, ये मसल फाइबर शो कर देना है. दिस इज मसल फाइबर. और यहाँ पे दिस इज सार्कोलेमा, मतलब मसल मेम्ब्रेन. और यहाँ पे रिसेप्टर्स शो कर दो. बाकी तो सेम ही है, रेस्ट इज सेम. ठीक है, दिस इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ठीक है जी. एंड अब मुझे ये बताइए, रिफ्लेक्स एक्शन सबको क्लियर है? यस और नो? और do you want me to explain it again? Is it clear to everybody? Say unanimously अगर आता है तो yes or no? मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन आपको पता है, दैट इज सेंसरी नर्व फाइबर टू किसको जाती है, स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड में सीधा sensory nerve fiber synapse with motor nerve fiber which takes the response to the effector. It is simple. ठीक है जी. So that is, you can see here, sensory neuron goes to the spinal cord. From there, you know, the motor neuron it comes. ये है, या ये देखिए, इधर से ये मोटर न्यूरॉन बाहर आ जाता है. दिस इज, you know, this is reflex arc. ठीक है जी. सो दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन. यहाँ पे आप देख रहे हैं, दैट इज स्टिमुलस, गर्म को हाथ लगाया, रिसेप्टर्स इन स्किन ने स्टिमुलस लिया, गोज टू द sensory nerve fiber goes in the spinal cord. and यहाँ पे देखिए एक इंटर न्यूरॉन है, सिंपल, वो एक मीडिएट कर रहा है. ठीक है, उसने इससे मैसेज लिया, स्टिमुलस लिया, और मैसेज सीधा मोटर न्यूरॉन को दिया, और मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर्स को, मसल्स को दे दिया. दैट इज रिफ्लेक्स आर्क. सिंपल. रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन डज नॉट प्ले एनी रोल एक्सेप्ट दैट इट स्टोर्स द मेमोरी. जब एक्शन हो जाता है तो फिर ब्रेन को बता दिया जाता है कि ये हमने एक्शन किया. अदरवाइज brain plays no role in reflex arc. So this is meant for reflex arc की क्या इंपॉर्टेंस है, जरा लिख लो फटाफट से. Importance of reflex actions. There are many small animals, lower animals, which do not have complex brain. है तो सही brain, but बहुत simple सा है. Which do not have complex brain.
Therefore, most of their actions are controlled by spinal cord. Therefore, most of their actions are controlled by spinal cord. Such animals are called as reflex animals. Next point, in higher animals, brain gets much developed. But still, reflex actions persist. Reflex actions persist to protect unnecessary loading of brain, to protect unnecessary loading of brain. B point है to protect our body from harmful stimuli. To protect our body from harmful stimuli. ठीक है, मेन ये चीजें, ठीक है. Examples of other reflex actions. Blinking reflex. आप ये लिख लो, पता आपको है. अगर जरा सा कोई कण अंदर चला जाता है तो एकदम आंखें ब्लिंक करती है ताकि पानी आए आंखों में और उस पानी के थ्रू वो डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाए. ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स. कफ रिफ्लेक्स, इसके लिए भी सोचना नहीं पड़ता. कोई हमारा खाना जो है वो सांस की नाली में चले जाए, कोई डस्ट पार्टिकल्स चला जाए तो एकदम खांसी आती है, छींकें आ जाती है. टू थ्रो आउट दैट. कफ रिफ्लेक्स लिख लो, ये सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शंस लिख लो. प्यूपिल रिफ्लेक्स, एकदम हम अंधेरे कमरे से रोशनी में जाते हैं तो हमारा प्यूपिल एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है. टू प्रोटेक्ट अवर आईज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट. राइट डाउन, नेम वेरियस रिफ्लेक्स एक्शंस. राइट डाउन दीज एवरीबडी. ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स, प्यूपिल रिफ्लेक्स. आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. Then we come to brain. ठीक है, ब्रेन का क्या पार्ट है? दैट इज, अगर हम देखें तो दिस इज ब्रेन. ये हमारा साइड में से हमारा ऐसे नजर आता है अगर हम देखें. सो इट अपीयर्स लाइक दिस फ्रॉम द साइड. दिख रहा है ना आपको ये? हाँ, ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है. सो दिस इज, अगर हम इधर से काट के देखें तो ये हमारा ब्रेन ऐसे नजर आता है. सो दिस इज ब्रेन. ब्रेन का ये कौन सा पार्ट है? दैट इज मैक्सिमम फोर ब्रेन. लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन. अंदर मिड ब्रेन छोटा सा है और दिस इज हिंड ब्रेन. पीछे जो है हिंड ब्रेन है. दिस इज सेरिबेलम. यहाँ पीछे दोनों तरफ सेरिबेलर लोब्स है, दो लोब्स है. सेरिबेलम. दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. और यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे क्या होता है? दैट इज पोन्स वेरुलाई, जो जोड़ रहा है यहाँ पे इधर. दिस इज पोन्स, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड दिस इज सेरिबेलम. राइट? सो दिस इज साइड व्यू ऑफ द ब्रेन. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, देन हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन में मैं यहीं पे ही आपको दिखाती हूँ. फोर ब्रेन. फोर ब्रेन के कौन से थ्री पार्ट्स हमने करने हैं? दैट इज, ये लिख लेना एवरीबडी. सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. राइट डाउन. सेरिब्रम, सब लिख लो फटाफट से. 5 मिनट हम और लेंगे और खत्म करेंगे ताकि आपका ये पक्का हो जाए. सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. उसके बाद हमारे पास और क्या है? देन वी हैव मिड ब्रेन.
पार्ट्स होते हैं बट आपके लेवल पे नहीं है, मिड ब्रेन. एंड देन वी हैव हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन के बेटा 3 पार्ट्स हमने कौन से किए हैं? सेरिबेलम, और क्या है? पोन्स, और तीसरा क्या है? बोला करो बेटा, बोला करो. मेडुला ऑब्लोंगेटा. राइट डाउन द 3 पार्ट्स. ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे भी देखें, देखो, दिस इज, ये सारा, ये जो ऊपर नजर आ रहा है, दिस इज होल फोर ब्रेन. फोर ब्रेन का ये जो बहुत ज्यादा कॉइल्ड पार्ट है, दिस इज सेरिब्रम. ये जो है, ये है थैलेमस. ये जो है, इसके नीचे हाइपोथैलेमस, मतलब थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस. और जब आप केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो हाइपोथैलेमस के साथ ये जो आपको दिख रही है, ये क्या जुड़ी हुई है? दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि ये सारा पार्ट क्या है? फोर ब्रेन है. देन दिस इज, यू नो, मिड ब्रेन कहाँ पे चला गया? दिस इज, ये जो छोटे सा पार्ट है, ये वाला, दिस इज मिड ब्रेन. ये मिड ब्रेन है. और इसके नीचे ये सारा क्या है? हिंड ब्रेन. ये ऊपर वाला फोर ब्रेन, नीचे वाला हिंड ब्रेन. ये छोटा सा पार्ट जो है, दिस इज, यू नो, दिस इज मिड ब्रेन. ठीक है, और हिंड ब्रेन में दिस इज पोन्स, दिस इज ये ट्री लाइक सा स्ट्रक्चर सेरिबेलम, एंड देन दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. ये है सेरिबेलम, ये है पोन्स, और नीचे है मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यूज विद द स्पाइनल कॉर्ड. इज इट ओके? डायग्राम बनाया हुआ है आपने कॉपी में, स्कूल वाली में, कि नहीं? यस और नो? ठीक है, चलिए, ये आपको पता चल गया. अब जल्दी से फंक्शंस एक बार हम फटाफट से वो कर ले, एंड दैट विल बी कंप्लीटेड. जल्दी से, सेरिब्रम, राइट डाउन फंक्शंस ऑफ cerebrum. That is thinking. Write down thinking and intelligence. Thinking and intelligence is, it controls thinking, it controls intelligence, it interprets sensory information. जितने भी sensory organs है हमारे, it interprets sensory information. Smell, such as smell, vision, sound, taste, pain. कौन कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन है? इट इंटरप्रेट्स सेंसरी इंफॉर्मेशन सच एज साउंड, विजन, पेन, टेस्ट, एटसेट्रा. ठीक है, इट इनिशिएट्स एंड कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस. चलो हम इस पे बात नहीं करते, हम इंटीग्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन पे. इट हैज, यू नो, हम कैसे है, डिसीजन मेकिंग. एक और पार्ट कीजिए सेरिब्रम का, डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग किसका काम है? दैट इज सेरिब्रम का काम है. नेक्स्ट आ जाता है थैलेमस. थैलेमस कंडक्ट्स
या रिलेज, राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, इट रिलेज sensory signals from receptors to cerebrum. It transports या relays sensory signals from receptors to cerebrum. ये सिर्फ रिले कर रहा है, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है. उसके बाद आ जाता है बेटा हाइपोथैलेमस. ब्रैकेट में लिखो थर्मोस्टेट ऑफ अवर बॉडी. बॉयज जल्दी से, हाइपोथैलेमस, थर्मोस्टेट ऑफ अवर बॉडी. थर्मोस्टेट, स्टैट मीन्स मेंटेन करना, चेंज ना करना. सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, कुछ भी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.4 रह रहा है. सो इट मेंटेन्स अवर बॉडी टेम्परेचर. हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है? इट मेंटेन्स अवर बॉडी टेम्परेचर. लास्ट सेकंड बेंच बॉयज, सीधे घर जाते हो, मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है, खाना दो, भूख लगी है, खाना दो. भूख कहाँ, कैसे पता चलता है, कौन डिटेक्ट करता है? हाइपोथैलेमस. इट हैज हंगर सेंटर, राइट डाउन, हैज हंगर सेंटर, भूख का सेंटर, थर्स्ट सेंटर. ये एक्टिवेट होता है तो हमें प्यास लगती है. हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर. इट कंट्रोल्स डे एंड नाइट रिदम्स. अब सोने का टाइम हो गया है, अब उठने का टाइम हो गया है, तो ये रिदम कौन कंट्रोल कर रहा है? स्लीप एंड वेक साइकिल, राइट डाउन. हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स स्लीप एंड वेक साइकिल. सोना उठना कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस. जो रात रात को रीले देखते हो ना बेटा, उससे क्या खराब हो रहा है? हाइपोथैलेमस का बैलेंस खराब हो रहा है. और फिर हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स खराब होंगे. राइट डाउन अनदर पॉइंट, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग हॉर्मोनल सिक्रीशंस. इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग हॉर्मोनल सिक्रीशंस. वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस, हार्मोनल सिक्रीशन. हाइपोथैलेमस खराब तो सारी बॉडी खराब, आप ये सोचो. और हम इसको डिस्टर्ब करते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाता है मिड ब्रेन. जैसे ही मैं कहती हूं इधर लास्ट सेकंड बेंच, द बॉय विद द टर्बन, सी हियर, इसने इमीडिएटली गर्दन जो है पहले पीछे थी अब आगे की. किसके कारण? मिड ब्रेन के कारण. मिड ब्रेन कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ नेक एंड हेड, राइट डाउन. It coordinates the movement of head, neck, and eyes in direction of sound. In direction of sound. Head, neck, and eyes in direction of sound. जहां से आवाज आई वहां को घूमती है. मैं इधर लिखती हूँ, मुझे पीछे से आवाज आती है, मैं फटाफट घूमती हूँ. चुप कर जाओ. नेक्स्ट सेरिबेलम. नेक्स्ट इज सेरिबेलम. नहीं, पहले मिड ब्रेन आ जाइए. मिड ब्रेन, अच्छा मिड ब्रेन तो बता दिया आपको, आई एम सॉरी. अच्छा, मिड ब्रेन में एक और पॉइंट लिखिए. इट इट रेगुलेट्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ अवर बॉडी. इट ऑल्सो रेगुलेट्स सम इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ अवर बॉडी. ज्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत. नेक्स्ट इज सेरिबेलम. बेटा लोग ड्रिंक करते हैं, कभी नाली में पड़े होते हैं, कभी सड़क के बीच में पड़े होते हैं, कभी लड़खड़ा के चल रहे होते हैं. क्या खराब होता है? सेरिबेलम इफेक्ट करता है. इज इट राइट? देखा है ना, साइकिल से गिरे. हमारे तो यहाँ के रात के 9, 9:30, 10 बजे चले जाओ, है ना, हमारे साथ में ही कुछ ऐसी सोसाइटीज है जहाँ पे लोग ऐसे नशा पत्ता करते हैं. तो वो रात को चले जाओ, वो कहीं पे कहीं गिरे होते हैं, साइकिल कहीं होती है, खुद कहीं होते हैं. हाउ बैड. ठीक है. सो दैट इज ड्यू टू इफेक्ट ऑन सेरिबेलम. सो सेरिबेलम में कंट्रोल्स इरेक्ट पोस्चर. चार पैरों पे नहीं चल रहे, इरेक्ट है. किस कारण? सेरिबेलम के कारण. राइट डाउन. रेगुलेट्स या कंट्रोल्स इरेक्ट पोस्चर. उसके बाद हम चल रहे हैं प्रॉपर. मेंटेन्स बैलेंस ड्यूरिंग लोकोमोशन. शराबियों का यही तो है, उनका बैलेंस नहीं बनता तो फिर गिरते हैं. मेंटेन्स बैलेंस
ड्यूरिंग लोकोमोशन। बेटा आप डांस कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, है ना, बहुत सारे लोग क्लासिकल डांस कर रहे हैं, या फिर डांस की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, आई डोंट नो ऑल द नेम्स, बट चलिए, है ना, सालसा कर रहे हो, जैज कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। तो पहले आप क्या करते हो, पहले उसको सीखते हो। क्लासिकल डांस या कोई भी डांस फॉर्म है, फर्स्ट यू लर्न विद द हेल्प ऑफ द सेरिब्रम। उसके बाद जब आ जाता है, उसके बाद सोचना थोड़ी पड़ता है, हाथ यहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है, यहाँ लाना है या यहाँ लाना है, फिर नहीं सोचना पड़ता, फिर तो आप रिदम के साथ चलते हो। देन इट बिकम्स रिफ्लेक्स एक्शन। स्विमिंग पहले आप सीखते हो कि है कैसे कैसे करना है, कौन सी बाजू अंदर लेके आए, कौन सी बाहर करें, सिर ऊपर लाएं, सिर नीचे करें, क्या करें, पैर चलाएं कि ना चलाएं, व्हाट शुड वी डू। फर्स्ट यू लर्न विद द हेल्प ऑफ सेरिब्रम। देन उसके बाद जब आ जाती है, पानी में जाते हो, तब सोचते थोड़ी हो, तर 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 करके क्रॉस कर जाते हो। सो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। सो राइट डाउन, it controls those reflex actions which require learning by cerebrum. It controls those reflex actions which requires learning by cerebrum. For example, swimming, typing. Examples लिख लीजिए. For example, swimming, typing, dancing, knitting, है ना, मम्मा स्वेटर बुनती है, देख कहीं और रही है काम, बातें किसी और से कर रही है, और स्वेटर आपका पूरा हो रहा है, ठीक है, दैट इज ड्यू टू सेरिबेलम। पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स का लिख लीजिए, इट रेगुलेट्स ब्रीदिंग अलोंग विद मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट रेगुलेट्स ब्रीदिंग अलोंग विद मेडुला, अकेले नहीं, मेडुला की हेल्प से। और लास्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो क्या क्या है, रेगुलेट्स ब्रीदिंग, लिखो, रेगुलेट्स ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, regulates breathing, heartbeat, blood pressure, swallowing, coughing, sneezing, vomiting, egestion, etc. ठीक है जी, तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन है, और हम फटाफट से विद इन 1 मिनट, है ना, मनप्रीत सर मुझे जरूर गालियां दे रहे होंगे कि मैडम छोड़ ही नहीं रही, बट ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रिया, ध्यान से, रिया स्मेल्स हर फेवरेट फूड, कहाँ पे एक्शन गया, ध्यान से, सेरिब्रम में, और उसके मुंह में पानी आ गया, सलाइवेशन। यहाँ पे देखो, मेडुला ऑब्लोंगेटा में सलाइवेशन लिखा है, राइट डाउन, आई डोंट थिंक ये लिखा है सलाइवेशन सेंटर। पहले सेरिब्रम में स्मेल गई, और उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा ने सलाइवेशन की, राइट। देन नेक्स्ट आ जाता है then these students, they are going on the hill in a straight line in a correct posture. कौन कंट्रोल कर रहा है, जल्दी से, everybody tell me what is this center. हाँ, इरेक्ट पोस्चर, बैलेंस ड्यूरिंग लोकोमोशन, कौन कंट्रोल करता है, बोलते चलो जल्दी से। सेरिबेलम, बिल्कुल ठीक है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। इसने बेचारे ने ज्यादा खाना खा लिया, ठीक है, वोमिटिंग कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, नीचे वाला वोमिटिंग सेंटर। नेक्स्ट, ब्रीदिंग, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, कौन कंट्रोल करता है बेटा, medulla oblongata along with pons varolai. So pons varolai and medulla oblongata, it controls breathing. Then इसने घंटी सुनी और अपनी गर्दन घुमाई, किसकी हेल्प से,
मिड ब्रेन की हेल्प से, वेरी गुड, मिड ब्रेन की हेल्प से। नेक्स्ट है स्मेल ऑफ द फूड एंड डिसाइड टू ईट, डिसीजन लेना है कि अच्छा गोलगप्पे की स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है, पानी की बड़ी अच्छी खुशबू, खा ही लेते हैं। डिसीजन लेना है, कौन एक्टिवेट हुआ? सेरिब्रम, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, 10 बजे सोना है, 6 बजे उठना है, स्लीप वेक साइकिल विच कंट्रोल्स? हाइपोथैलेमस, बिल्कुल ठीक है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल स्लीप वेक साइकिल। राइटिंग विद ए पेन, हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज, क्या सोच सोच के लिखना है, कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम एक लास्ट में जो है, लास्ट स्लाइड हम, अब ये बॉयज आ जाएं जल्दी से, पीछे वाली आगे से, फर्स्ट 2 बॉय, जितनी जल्दी आओगे उतनी जल्दी खत्म होगा। आ जाओ फर्स्ट बॉय, कम ऑन कम ऑन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब एक लाइन में आ जाओ, जल्दी से आओ ताकि खत्म करें ये बेटा। नहीं आओगे तो मैं भी खड़ी हूं, तुम भी खड़े हो। आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं बताना इसमें से, पार्ट ऑफ ब्रेन ही बताना है। आ जा, पहला लड़का आ जाओ, फर्स्ट बेंच फर्स्ट बॉय, आ जा। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी, हाँ। बीच बीच में आओ, बीच वाले रो में। तपस इज सॉल्विंग ए डिफिकल्ट मैथमेटिक प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ विच पार्ट ऑफ ब्रेन? इधर बीच में, बीच में मुझे दिखो जरा। चलिए जी, चलो हम बता देते हैं। तपस इज सॉल्विंग अ डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ सेरिब्रम। दीप्ति इज वॉकिंग ऑन ए नैरो माउंटेन पाथ, वॉकिंग है किसकी हेल्प से? सेरिबेलम। स्टूडेंट टर्न्स टुवर्ड्स ए सडन लाउड साउंड, किसकी हेल्प से? मिड ब्रेन की हेल्प से। चाइल्ड फील्स थर्स्टी, किसकी हेल्प से? हाइपोथैलेमस। हार्ट कॉन्टिन्यूअस बीटिंग with the help of medulla oblongata. Sensory information directed to cerebrum, कौन लेके जा रहा है? With the help of thalamus. Then again breathing with the help of pons varoli and medulla oblongata. Student performs careful coordinated dance steps, again cerebellum. Thinks and eat to decide, cerebrum, and mouth becomes watering, salivation, with the help of medulla oblongata. So this is all for today. Thank you students. Bye bye.